Hello student. Today my topic of this lecture that is about some important salts. This is one of the important topic from your unit, that is acid, bases and salt here. Now we are going with some of the important salt here. So what do you mean by actually salt? Salt is nothing. It is a composition of, you can say, when acid and bases react together here, and if they react together they give rise to formation of a product, and that product is generally a salt here. For example, to understand this one here, if we have, that is sodium hydroxide, when react with acid HCl, so sodium hydroxide is base and HCl is acid here, so what we get? We get sodium chloride, and this sodium chloride is called as salt here. So we are going to study here some of the important salts and how salt can be characterized here. Now we have here, that is what you mean by salt. Salt are generally the ionic compounds which are found by the reaction of acid and bases here, or when acids and bases react here. तो एज वी नो दैट एसिड्स आर जनरली, जब हम बात करते थे तो एसिड्स हमारे पास क्या होते थे कि हम कहते थे एसिड्स आर दोज विच लिबरेट H पॉजिटिव आयन एंड बेसिस आर दोज विच लिबरेट OH नेगेटिव आयन से. तो इट मीन्स एसिड्स हमारे पास पॉजिटिव चार्ज की तरफ हमें बताता है और बेसिस हमारे पास नेगेटिव की तरफ. तो जब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आपस में मिलेंगे तो हमारे पास क्या होगा? The positive and negative charge balance each other here. So because of this balancing of the positive and negative charge here, they will give rise to formation of a neutral species, and because they get neutralized, and that's why the salt are generally called as electrically neutral here. And some of the one of the most common example of salt is, that is sodium chloride here, which is also called as a common salt here. So in this slide you can also see some of the other important salts like ferric chloride, FeCl2, magnesium chloride, zinc chloride, sodium chloride, copper chloride, copper sulfate, aluminum sulfate, potassium chloride, and so on here. So this is just some of the example, and their how they look like here. When we go through these salt here, we find that the color of the salt is quite interesting, and most of these salt are considered to be color and shining, and they are easily soluble in water here. So here we have some of the characteristic salt here. The most of salt are crystalline solid. Solid may be transparent. Most of salt are soluble in water. तो पानी में अगर हम इसको घोलते हैं तो इजीली सॉल्युबल हो जाता है. जैसे आपके पास सोडियम क्लोराइड टेबल साल्ट पानी में डाला, इजीली सॉल्युबल है. कॉपर सल्फेट पानी में डालेंगे तो इजीली सॉल्युबल. तो सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट है, जितने हमारे पास सॉल्ट होंगे उनके जो सॉल्यूशंस होंगे, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी है. बट अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो उसमें कोई करंट नहीं आएगी. जैसे हमारे पास नमक है, नमक का अगर सॉलिड फॉर्म में है तो उसमें से अगर हम करंट पास करेंगे देयर विल बी नो करंट है. तो तभी हम कहते हैं जो आपके पास डिस्टिल्ड वाटर होता है, दे डज नॉट करंट कैरी द करंट हेयर. लेकिन अगर हम उसमें थोड़ा सा साल्ट डालें तो देन दे कैरी द करंट हेयर. द साल्ट में भी साल्टी, सोर, स्वीट, बिटर, टेस्ट एंड सेवरी. टेस्टी नेचर होते हैं इसके. न्यूट्रल साल्ट आर ऑर्डरलेस, सॉल्ट कैन बी कलरलेस आर द कलर है. तो तभी हम कहते हैं कि जैसे हमारे पास एक बात आती है कि जैसे हम कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं कि सॉल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली व्हेन दे आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन है. तो वाटर हम क्या कहते हैं कि वाटर से करंट पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वाटर से हमें मोस्टली करंट पड़े. जब तक उस वाटर के अंदर हमारे पास आयंस नहीं प्रेजेंट होंगे देन वाटर कैन नॉट कैरी करंट है. हम अगर डिस्टिल वाटर के अंदर, जो कि पूरा डी आयोनाइज्ड वाटर होता है, कौन सा? डी आयोनाइज्ड है, तो कहता है जो डी आयोनाइज्ड वाटर होता है हमारे पास, वो हमारे पास डज नॉट कंडक्ट करंट है. तो अगर हमारे पास कोई डिस्टिल्ड वाटर है, प्योर डिस्टिल्ड वाटर है, अगर उसमें हम करंट डालेंगे तो हमें करंट कभी नहीं पड़ेगी. लेकिन अगर उसके अंदर हम थोड़ा सा साल्ट डाल लें, अच्छी तरह से ला देंगे, देन दे आर एबल टू कैरी द करंट है. लेकिन ये नहीं कि मार्केट के अंदर जो पानी आता है वो डी आयोनाइज्ड वाटर होता है. दैट वाटर इज़ नॉट ए डी आयोनाइज्ड और नॉट डिस्टिल्ड वाटर, बिकॉज उसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं जिससे उसमें उसकी कंडक्टिविटी आ सकती है. तो सॉल्ट कैन बी कलरलेस एज वेल एज द कलर्ड है.
Now next we have the types of salt here. Salts are generally classified on the basis of their nature, neutral, acidic and basic salt. So these characterization of salt here किसके बेसिस के ऊपर है कि कहाँ से हम इनको बना रहे हैं, कि from where we prepare or made these salt here. For example, in case of neutral salts are generally formed by the reaction between strong acid and strong base here. स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होंगे हमारे पास, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास NaOH, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, एंड स्ट्रॉन्ग एसिड दैट इज HCl है. स्ट्रॉन्ग एसिड और कौन सा होता है, सल्फ्यूरिक एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड और कौन सा होता है आपके पास, दैट इज नाइट्रिक एसिड. तो इनको अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या लिथियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करते हैं तो ये प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास, दे आर कॉल्ड एज ए न्यूट्रल साल्ट है. तो न्यूट्रल साल्ट तब बनेंगे जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, आपस में रिएक्ट करेगा. तो हमें कैसे पता चलेगा कि साल्ट न्यूट्रल है, बिकॉज एट दैट केस द पीएच वैल्यू ऑफ दैट साल्ट इज द 7 है. तो हमें लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि जो पीएच वैल्यू हमारे पास, दिस गिव अस ए, दैट इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू विच गिव अस द इंडिकेशन कि हमारे पास एसिड स्ट्रॉन्ग है या फिर बेस कितना स्ट्रॉन्ग है. तो अगर वैल्यू 1 to 6 है तो हम क्या कहते हैं, एसिड्स हैं. अगर 1 है तो वो स्ट्रॉन्गर एसिड है, अगर 6 है तो वो वीकर एसिड है. उसी तरह से बेस के बारे में अगर 8 वैल्यू है तो हम क्या कहेंगे, वीक बेस है. अगर वैल्यू हमारे पास मोर देन 8 है तो हम क्या कहेंगे, दे आर प्रोसीडिंग टूवर्ड दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट नेचर है. ठीक है, तो जब 14 वैल्यू होती है तो हमारे पास जो बेसिक नेचर होता है वो क्या होता है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग होता है. तो एग्जाम्पल ऑफ सम ऑफ द न्यूट्रल एसिड, न्यूट्रल साल्ट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट एंड सो ऑन हियर. तो हाउ दीज कैन बी ऑब्टेन, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद HCl, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, HCl is a strong acid. Do we get sodium chloride? Again we have sodium hydroxide strong base, sulfuric is a strong acid, we get sodium sulfate here. Potassium hydroxide HCl, we get potassium chloride here. So these are sodium hydroxide, potassium hydroxide, sulfuric acid, nitric acid, HCl, they are all considered to be a strong acid as well as strong base. And जो salt इनसे बन रहे हैं they are considered to be neutral here. तो how they are get neutral है, because sodium is positive and chlorine is negative है. तो सोडियम पॉजिटिव है और क्लोरीन हमारा नेगेटिव है, जिससे वो क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे. लेकिन आप कहोगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग बेस हम न्यूट्रल कैसे कंसीडर करेंगे. तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट नेचर है इसका वो हमें पता है, वो किस पे डिपेंड करती है कि हाउ ईजिली दे डोनेट H पॉजिटिव आयन और हाउ ईजिली दे डोनेट द OH नेगेटिव. तो हम क्या कहते हैं कि उसमें एक ही तरह की रिएक्शन होती थी, जहाँ पे एक आप कहोगे इरिवर्सिबल रिएक्शन इज सीन इन दिस केस हियर. नेक्स्ट वी हैव दैट इज एसिडिक साल्ट. तो एसिडिक साल्ट हमारे पास कब बनेंगे, जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और हमारे पास क्या होगा, वीक बेस होगा. तो स्ट्रॉन्ग एसिड व्हेन रिएक्ट विद वीक बेस, दिस गिव राइज टू फॉर्मेशन ऑफ ए एसिडिक साल्ट है. इट मीन्स उसके अंदर जो एसिडिक नेचर होगा वो हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा होगा. सो इसके लिए मैं आपको एक प्रीवियस लेक्चर के थोड़ा ध्यान देता हूँ. तो हम क्या करते थे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते थे. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता था कि जब हम एसिड और बेस को रिएक्ट करते थे, तो न्यूट्रलाइजेशन मीन्स वी हैव टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड और बेस हियर. अगर एसिड का न्यूट्रलाइज करना एसिड को, तो हम क्या करते हैं, उसको बेस के साथ ट्रीट करते हैं. जैसे हमें एसिडिटी होती है तो हम क्या खाते हैं, एंटासिड. तो एंटासिड में क्या होता है, बेसिक साल्ट होता है. उसमें क्या होता है, बेसिक साल्ट होता है. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया या फिर कार्बोनेट्स हो गए. तो ये क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है. तो कितना स्ट्रॉन्गर बेस है तो वो उसको जल्दी न्यूट्रलाइज करेगा. अगर हम वीक बेस लेंगे तो वो उसको न्यूट्रलाइज लेट में करेगा. तो कहता है जब हम न्यूट्रलाइज कर रहे हैं तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इवन कि हमारे पास बेस है लेकिन वो वीक है, तो वो उसको न्यूट्रलाइज नहीं करेगा. अगर नहीं कर पाएगा तो जो साल्ट बनेगा उसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा.
इसलिए हमारे पास उनको हम क्या कहते हैं, वी कॉल दैम एज ए एसिडिक साल्ट है। तो पीएच वैल्यू जो होगी हमारे पास दैट इज लोअर देन 7 के, तो 1 to 6 वैल्यू होगी क्योंकि एसिडिक साल्ट होगा। तो एग्जांपल हमारे पास अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज ए वीक बेस है। ये क्या हमारे पास एक वीक बेस है जो कि किसके साथ अट्रैक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। तो हमारे पास क्या बन रहा है, वी गेट एसिडिक साल्ट है। तो हम क्या कहेंगे, अमोनिया की कम्प्लेक्स हमारे पास क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग है साल्ट, सॉरी एसिडिक साल्ट कैसे हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि जब अमोनिया प्रोडक्ट बनेगा तो अमोनिया के केस में क्या होगा कि जो क्लोराइड आयन है वो इजीली क्या होगा, डिसोशिएट हो जाएगा, बिकॉज जो हमारे पास NH4 है पॉजिटिव, इट इज स्टेबल आयन है। तो इसलिए ये क्या करेगा, आपको क्लोराइड आयन वापिस देगा। जब क्लोराइड आयन वापिस आएगा तो वो H के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो इसलिए हमारे पास ये जो साल्ट होगा वो क्या होगा हमारे पास, दिस इज कॉल्ड एज ए एसिडिक साल्ट है। ये क्या हमारे पास, इट इज ए एसिडिक साल्ट और इट इज कॉल्ड एज ए कंजुगेटेड बेस है। और सिमिलरली हमारे पास दूसरी रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, नो डाउट इज ए बेस एंड इट इज ए वीक बेस एंड वी गेट सल्फ्यूरिक एसिड विच इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अमोनियम सल्फेट यहाँ पे बना, जो अमोनियम सल्फेट है दैट इज ए स्ट्रॉन्ग, sorry, it is a acidic salt here. Similarly we have basic salt. Basic salt में हमारे पास क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। फॉर एग्जांपल तो इस केस में जो पीएच वैल्यू है दैट इज़ वैल्यू मोर देन 7 here, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक ये वैल्यू जा सकती है हमारे पास। तो इस केस में हमारे पास एसिड क्या होगा, वीक होगा और बेस हमारे पास क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो फॉर्मेशन इट मीन दिस इज ए वीक एसिड, कार्बोनिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, दे बोथ आर कॉल्ड एज वीक एसिड है। तो स्ट्रांग एसिड कौन से होते हैं, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, और वीक एसिड कौन से हो गए, बाइकार्बोनिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। तो ये दो जो हमारे पास बेस हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम दे आर द स्ट्रांग है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो साल्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, पोटेशियम कार्बोनेट। तो इसमें भी आप पोटेशियम साल्ट लेंगे तो इसमें भी बन जाएगा हमारे पास CH3COOK, दैट इज पोटेशियम एसीटेट। तो हमारे पास दोनों के हमारे पास क्या बनेगा, वी गेट ए सोडियम एसीटेट एज वेल एज सोडियम कार्बोनेट। एंड सोडियम एसीटेट एंड सोडियम कार्बोनेट जो दोनों हमारे पास क्या होंगे, दे आर द बेसिक साल्ट है। वो क्या हमारे पास बेसिक साल्ट है, ठीक है। So this is what we have, acidic and basic salt. Now here we have the some of the common or important salt, that is sodium hydroxide here. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, इट इज़ ए बेसिक साल्ट, और इसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसको, इसके सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, ब्राइन सोल्यूशन के। तो ब्राइन सोल्यूशन हमारे पास मोस्टली कहाँ पे मिलता है, जब आप किसी डॉक्टर की दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे जब आपको इंजेक्शन लगता है तो उसके पास हमारे पास क्या होता है, ब्राइन सोल्यूशन होता है। और मोस्टली जब हम ग्लूकोज कहते हैं कि पेशेंट को ग्लूकोज लग रहा है, तो ग्लूकोज नहीं होता उसके अंदर ही हमारे पास, आप देखना कभी वहाँ पे पढ़ोगे तो वहाँ पे भी आपको ब्राइन सोल्यूशन ही मिलेगा, ठीक है। तो दो तरह के सोल्यूशन होते हैं, एक SN होता है, कि DN होता है, बट इसकी डिफ्रेंशिएशन पे नहीं जाना हमने। तो ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज ए सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। तो क्लोराइड जब हम इसकी डिकम्पोजिशन करते हैं तो कैसे बनाते हैं हमारे पास, इन दिस प्रोसेस, तो सोडियम क्लोराइड जो हमारे पास होता है दिस इज कॉल्ड एज ए ब्राइन सोल्यूशन, ठीक है। तो इन दिस प्रोसेस क्लोरीन इज ऑब्टेन्ड एट एनोड एंड हाइड्रोजन गैस जो हमारे पास होती है इट इज ऑब्टेन्ड एट द कैथोड है। तो हम क्या कहेंगे, इट इज़ ए इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन है। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इलेक्ट्रोलिटिक जो डिकम्पोजिशन होती है, यू पीपल नो हियर कि इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन जब भी होगी उसके लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड टू इलेक्ट्रोड है। तो लेट अस सपोज ये हमारे पास बीकर है, उसके अंदर हमने क्या ले लिए, 2 इलेक्ट्रोड ले लिए और इसके अंदर हमने क्या डाल दिए, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। और जब इसको हम कोई करंट देंगे, लेट अस सपोज हम यहाँ पे करंट दे रहे हैं इसको, तो अगर ये पॉजिटिव एंड है और ये क्या होगा, नेगेटिव एंड होगा, तो नेगेटिव एंड के ऊपर हमारे पास सोडियम चला जाएगा और पॉजिटिव एंड के ऊपर क्या चला जाएगा,
दैट इज क्लोराइड। बिकॉज बाय, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और जो मूवमेंट होगी वो अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड पे होगी। तो एक इलेक्ट्रोड हमारे पास था पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रोड था हमारे पास नेगेटिव। तो जो हाइड्रोजन गैस है वो कहाँ पे चलेगी? कैथोड के ऊपर। तो कैथोड हो गया हमारे पास नेगेटिव एंड, और एनोड हो गया हमारे पास पॉजिटिव एंड है। तो एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस और कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस, जिससे हमारे पास क्या होगा? वी गेट सोडियम क्लोराइड इन डिसोसिएशन, एंड वी गेट द सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है। नाउ and this whole process is called as Core alkali process, और यूज़ ऑफ दिस प्रोडक्ट आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, क्योंकि ब्राइन में हमारे पास दो डिफरेंट बाई प्रोडक्ट भी बनते हैं। हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होती है उसको हम फ्यूल के बेसिस के ऊपर भी इसको स्टोर कर सकते हैं। जो हाइड्रोजन गैस है इसको फर्टिलाइज़र की फार्म के लिए भी, हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी इसको हम स्टोर कर सकते हैं। बिकॉज जो अमोनिया प्रोसेस है, अमोनिया बनाने का, क्योंकि अमोनिया इज़ अ बिगेस्ट रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइज़र है। ठीक है। तो उसके लिए जितना भी नाइट्रोजन होगा अमोनिया के लिए, वो हम कहाँ से लेंगे? जहाँ हाइड्रोजन होगा, दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम दिस, बिकॉज अमोनिया इज जनरली ऑब्टेन बट हाइड्रोजन विल रिएक्ट विद नाइट्रोजन। तो हमें क्या मिलता है 2 टाइम अमोनिया है तो 3 टाइम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के, तो 3 टाइम हाइड्रोजन 1 टाइम नाइट्रोजन। तो ये जो हाइड्रोजन है दिस इज आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम दिस सोर्सेज। क्लोरीन गैस इज आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम हियर, जिसको हम वेरियस मैन्युफैक्चरिंग पॉलीमर के लिए यूज़ करते हैं, जैसे पीबीसी हो गया, डिसइंफेक्टेंट हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गए, उसमें जो क्लोरीन गैस है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ आल्सो यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर का जो मेन एजेंट है वो हमारे पास क्या है? दैट इज़ यू कैन से क्लोरीन गैस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो यूज फॉर डी गैसिंग मेटल्स। मेटल के ऊपर जो गैस लगी होती है, जहाँ वाटर वेपर्स लगे होते हैं, उसको रिमूव करने के लिए हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड हम यूज़ करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, सोप, डिटर्जेंट, आर्टिफिशियल फाइबर एंड ब्लीच है। दिस इज all can be manufactured or prepared by the byproduct of the brine solution है। तो ब्राइन सोल्यूशन क्या है हमारे पास? दैट इज सोडियम क्लोराइड है। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है दिस इज कॉल्ड एज एल्कली सोल्यूशन के। ठीक। नाउ नेक्स्ट वी हैव ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज नथिंग, इट इज ए क्लोरीन ऑफ लाइम, इसको हम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं, दैट इज क्लोराइड ऑफ लाइम। इट इज सॉलिड एंड येलोइश वाइट इन कलर। सो मोस्टली जो इसकी आइडेंटिफिकेशन है दैट इज बिकॉज ऑफ द स्मेल विच गेट इवेपोरेट फ्रॉम द ब्लीचिंग पाउडर है। तो जो ट्यूबवेल का पानी होता है, जहाँ पे पीएच की सप्लाई आती है, पीएचई की सप्लाई आती है पानी की, वहाँ पे आप लोग देखो जो टैप से जब पानी निकलता है सुबह, तो उसमें एक थोड़ी सी स्मेल होती है। वो जो स्मेल आती है वो किसकी आती है? दैट इज़ क्लोरीन की। तो क्लोरीन जो होता है हमारे पास, दिस इज एक्ट एज ए डिसइंफेक्टेंट है। इट इज यूज टू किल द germ. So when bleaching powder react with water, it gives rise to formation of a that is hypochlorite है, and this hypochlorite used as a disinfectant है। तो आजकल कोरोना के केस में भी आप लोग बड़े ज़्यादा सुन रहे होंगे अबाउट हाइपोक्लोराइट। तो जो आप लोग म्यूनिसपैलिटी की गाड़ियाँ हों, जहाँ आप लोग टीवी में देखते हैं कि बड़े बड़े टैंकर एक स्प्रे फेंक रहे हैं वाटर में डिजॉल्व होकर, वो सारा क्या था? हाइपोक्लोराइट है। और वो जो हाइपोक्लोराइट है दिस इज एक्ट एज ए डिसइंफेक्टेंट है एंड इट यूज टू किल द जर्म है। तो दिस इज आल्सो ए बाय प्रोडक्ट ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर है। तो जब ब्लीचिंग पाउडर पानी के साथ मिलता है तो इस तरह से हमारे पास रिएक्शन होती है और वो उसको क्या करता है? दैट इज डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ब्लीचिंग पाउडर हमारे पास क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड प्लस वाटर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर, दिस गिव राइज टू फॉर्मेशन ऑफ ए हाइपोक्लोराइट है। ठीक है। तो इस तरह से ये जो हाइपोक्लोराइट है
ये हमारे पास यूज़ होता है एज ए डिसइंफेक्टेंट। तो पानी में जब ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं तो वो ये एक साल्ट बनाता है जो कि जर्म्स को किल करता है, ठीक है। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक लाइम और हमारे पास क्लोरीन गैस को रिएक्ट करते हैं तो आपके पास क्या बनता है, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो एक्वा सॉल्यूशंस होता है दैट इज बेसिक इन नेचर के, ठीक। नाउ देयर आर सर्टेन यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज एज ए डिसइंफेक्टेंट टू क्लीन वाटर, मॉस रिमूवर, वीड्स किलर से। तो जो मॉस रिमूवर होता है उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं, और जो घास अनवांटेड घास उगता है मोस्टली जो आपके स्विमिंग पूल्स होते हैं उसमें अगर अनवांटेड घास होता है तो वहाँ पे हम क्या फेंकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। तो एक दिन के लिए ब्लीचिंग पाउडर फेंक देते हैं, तो देन फिर उसको दूसरे दिन हम क्या करते हैं, उस पानी को फेंक देते हैं। देन जितना भी वीड होगी या फिर मॉस होंगे दे कैन बी रिमूव बाय इजीली है। ब्लीचिंग पाउडर यूज फॉर ब्लीचिंग ऑफ कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो कपड़ों को ब्लीच करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं, कि जो हमारे पास फाउल स्मेलिंग होती है उसमें हम इसको यूज़ करते हैं। और जो कलर एजेंट होते हैं जो उस आप कहोगे कि पेपर इंडस्ट्री की जो उसके ऊपर एक कलर सा रहता है उसको निकालने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर को हम कई बार टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, पेपर इंडस्ट्री के अंदर, लेदर इंडस्ट्री के अंदर ही हम इसको यूज़ करते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास एजेंट होता है वो होता है क्लोरीन, बिकॉज क्लोरीन हैज़ द टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज है। तो क्लोरीन की जो ऑक्सीडाइजेबल प्रॉपर्टी है उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी सबस्टांसेस को ब्लीच करते हैं। तो ब्लीचिंग इज नथिंग, इट इज़ ए ऑक्सीडेशन है। जब अपने फेस पे आप ब्लीचिंग करते हो तो वहाँ पे भी क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। तो जब ऑक्सीडेशन होती है तो चेहरा क्या होता है, एक आपको ऐसे ब्राइट दिखता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ब्लीचिंग करने से या ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी की ऑक्सीडेशन होने से आपकी एजिंग होती है, जो सेल होते हैं वो एज्ड हो जाते हैं। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग करना हमारे लिए क्या होता है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसको एजिंग को रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट है। तो एंटीऑक्सीडेंट जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को रोक देता है। तो ऑक्सीडेशन जनरली क्या होता है हमारे पास, लॉस ऑफ वाटर आल्सो, लॉस ऑफ वाटर है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो आपके ब्लीचिंग पाउडर होता है उसको हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, पल्प इंडस्ट्री के अंदर, देन वी हैव आपकी लेदर इंडस्ट्री के अंदर जितना भी ब्लीचिंग का काम है वो हम ब्लीचिंग पाउडर से करते हैं, ठीक। नाउ दिस इज व्हाट वी हैव द यूजेस ऑफ दिस वन हियर। सो दिस इज all we have some of the common salt which are generally obtained when acid react with base here. Now what type acid react with what type of base here give rise to a different type of salt. They may be neutral, acidic as well as basic here. And there also we have some common salt जिसकी हम क्या करते हैं रेगुलर यूज़ करते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, देन ब्लीचिंग पाउडर हो गया। इनकी हमारे डे टू डे लाइफ में क्या ज़रूरत है, किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं, एंड वी हैव टू स्टडी इन दिस टॉपिक। तो होप you understand this topic, and all the very best here. Okay, bye bye, take care.